Assalamualaikum dear students, I am Mavish Malik. I am very happy to welcome you all to our Computer Bro 6 class at STEM International. हम लोगों ने चैप्टर 7 को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है. आज हम चैप्टर 7 की एक्सरसाइज को देखेंगे. इसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करेंगे, हम एमसीक्यूज़ को आंसर करेंगे, हम क्वेश्चन और आंसर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स को और एक्टिविटीज़ को भी थॉरोली डिस्कस करेंगे. तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ. Exercise Section A. Take the correct answer. Statement 1. An entrepreneur is a person who starts and manages a business. Option B. Statement 2. Which entrepreneurship focuses on solving social problems? Option C. Social entrepreneurship. Statement 3. Digital businesses mainly operate through Internet and technology. Option C. Statement 4. Which of the entrepreneurship involves identifying business opportunities? Discovery. Option C. Statement 5. Which tool helps businesses promote products online? Social media. Option D. Statement 6. A business plan mainly helps entrepreneurs to stay organized and focused. Option B. Statement 7. Which entrepreneurship starts with limited resources and grows slowly? Option B. Hustler entrepreneurship. Statement 8. Which technology helps store data online and access it from anywhere? Option C. Cloud storage. Statement 9. Which stage of the entrepreneurship involves securing funds, staff, and equipment? Option C. Resourcing. Statement 10. Which of the following digital tools help businesses track customer behavior and engagement? Option B. Website analytics tool. Section B. Write T for true and F for false in the given circles. Statement 1. Digital businesses can operate 24/7. True. Statement 2. Digital businesses usually have lower overhead costs than digital businesses. False. Statement 3. Technology helps businesses improve productivity and marketing. True. Statement 4. Harvesting is the first stage of entrepreneurship. False. Section C. Fill in the blanks. Our Dash entrepreneurship uses technology and online platform to run businesses. Digital entrepreneurship. Statement 2. Our Dash plan explains how a business will operate and grow. A business plan. Statement 3. Social entrepreneurs focus on solving social and environmental problems. Statement 4. Dash marketing uses online platform to reach customer. Digital marketing. Section D. Answer the following questions briefly. What is entrepreneurship? Entrepreneurship is the ability to start, manage and grow a business by taking risk and using creative ideas. Question number 2. Define a digital entrepreneur. A digital entrepreneur is someone who uses internet to start and run a business. Name any two types of entrepreneurship. हमने मल्टीपल टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ी है. यहाँ पे हमने सिर्फ दो मेंशन करनी है, तो हम इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप और हसलर एंटरप्रेन्योरशिप दो मेंशन कर सकते हैं. व्हाट इज द पर्पस? क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ बिजनेस प्लान? Business plan is a written document that explains how a business will operate and grow. Question number 5. How does technology help traditional businesses grow? Traditional businesses can greatly benefit from using modern technology to improve efficiency, reach more customers, and grow faster. Technology helps reduce manual work, save time, lower cost, and improve decision making. Question number 6. How does social entrepreneurship benefit society? Social entrepreneurs work to create positive change in areas such as education, healthcare, poverty reduction, and environmental protection. Question number 7. What is the role of resourcing in entrepreneurship process? Resourcing involves securing all the resources needed to start and run a business. These resources include funds, technology, skilled staff, raw material, and equipment. Question number 8. Why are digital businesses more cost-effective than traditional businesses? Businesses can reach customers globally, operate 24/7, and use online payments and digital marketing for faster growth. They save time, reduce cost, and provide convenience for both customers and business owners. Question number 9. How can social media help small businesses grow? Through social media, businesses can promote products, share updates, and interact directly with customers. Social media builds brand awareness and trust. What is overhead cost in a traditional business? Traditional businesses usually have high overhead costs because they require physical shops, rents, utilities, staff salaries, and maintenance expenses. These costs must be paid regularly even if sales are low. Section E. Answer the following questions in detail. Question number 1. Explain the difference between traditional business and digital business. पेज नंबर 91 के ऊपर आपके पास डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड डिजिटल बिजनेस का पैराग्राफ आ रहा है. वो पूरा का पूरा आएगा. इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने बताया है कि ट्रेडिशनल बिजनेस किस तरीके से ऑपरेट करते हैं और डिजिटल बिजनेस किस तरीके से ऑपरेट करते हैं.
तो वो पूरा पैराग्राफ आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस। इसमें हमने टोटल 5 स्टेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा है, तो आपको वो 5 स्टेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन डिटेल एक्सप्लेन करनी होंगी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन स्केलिंग ट्रेडिशनल बिजनेस। इसके लिए हमने 10 स्टेप्स पढ़े थे, जिसमें कि आपने कुछ टेक्नोलॉजी की चीजों को यूज करना होता है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स थे, प्रोडक्टिविटी एप्स थी, बैकअप सॉफ्टवेयर्स थे, क्लाउड स्टोरेज है, फिर सोशल मीडिया है आपके पास, फिर हम इसमें मार्केटिंग कैंपेन्स देखी थी, फिर हमने कस्टमर सर्विस को देखा था, फिर हमने वीडियो कंटेंट के यूटिलाइजेशन को देखा था, उसके बाद हमने विजुअल असिस्टेंट को डिस्कस किया था। तो ये सारे जब आप 10 पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आंसर हो जाएगा। एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चंस। Have you ever bought something online? How is it from shopping in a physical store? क्या आपने कभी कुछ ऑनलाइन परचेज किया है? अगर आपने परचेज किया है तो वो एक्सपीरियंस आपका किस तरीके से था, ये आपने लिखना है कि फिजिकल स्टोर और ऑनलाइन स्टोर के में परचेज करने से दोनों में क्या फर्क है, ये आपने एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 2, हैव यू सीन अ लोकल शॉप यूजिंग व्हाट्सएप और सोशल मीडिया फॉर बिजनेस? हाउ डिड इट हेल्प देम? क्या आपने कभी देखा है कि कोई लोकल शॉप या आपके घर के पास जो ग्रोसरी स्टोर है, क्या वो उसको व्हाट्सएप या सोशल मीडिया यूज करते हुए देखा है आपने? अगर आपने उन्हें देखा है तो वो उस बिजनेस को किस तरीके से हेल्प कर रही है और उससे आपको एज अ शॉपर किस तरीके से हेल्प हुई, ये आपने एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ यू वर टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस, व्हिच डिजिटल टूल वुड यू यूज फर्स्ट एंड व्हाई? अगर आप सोचें कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आप कौन सा वाला टूल उसमें इस्तेमाल करना पसंद करेंगे और क्यों? ये चीजें आपने सोचनी है और जो हमने बुक में कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनको अप्लाई करते हुए आपने इनको आंसर करना है। Think and answer. Why is it essential for entrepreneurs to use technology responsibly while running a digital business? अब आपने सोचना है कि हमने इतने सारे डिजिटल के बेनिफिट्स पढ़े थे, लास्ट चैप्टर में हमने डिजिटल सिटीजनशिप भी पढ़ी थी, तो आपने देखना है कि हम एक इंसान के लिए अगर इतना इंपॉर्टेंट है रिस्पॉन्सिबली डिजिटल सिटीजन होना, तो एक बिजनेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा इस चैप्टर में हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि जो रेपुटेशन है ऑनलाइन वो पॉजिटिव चीजों से बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाती है और नेगेटिव चीजों से बहुत जल्दी डिक्रीज हो जाती है आपकी रेपुटेशन या फिर डिमोटिवेट हो जाती है। तो उन सब पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आपने इसको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन ऑनलाइन रिव्यूज एंड कस्टमर फीडबैक अफेक्ट द रेपुटेशन ऑफ अ डिजिटल बिजनेस? अब पहले क्योंकि अगर हम डिजिटल बिजनेस की बात करें तो उसमें वर्ड ऑफ माउथ चलता था और वो रेपुटेशन आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होती थी। अब यहाँ पर अगर हम ऑनलाइन देखें तो लोग जब ऑनलाइन रिव्यूज देते हैं, ऑनलाइन फीडबैक देते हैं, वो कमेंट्स करते हैं, वो आपकी वेबसाइट के ऊपर जाके फीडबैक देते हैं, वहां पे कमेंट्स करते हैं, रिव्यूज देते हैं, आपको स्टार्स देते हैं, आपका बिजनेस फॉलो करते हैं, अनफॉलो करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। तो इन सब चीजों से जो आपका ऑनलाइन बिजनेस है वो इफेक्ट होता है। अगर ज्यादा लोग आपके सोशल मीडिया पेज को रिपोर्ट कर देते हैं तो वो पेज बंद हो जाता है, और अगर ज्यादा लोग आपको बैड रिव्यूज दे रहे हैं, आपके पोस्ट को लाइक नहीं कर रहे, इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो उससे भी बैड रेपुटेशन जाती है, जिसकी वजह से बिजनेस जो है वो या तो उसको बंद करना पड़ता है या फिर उसको अपनी कस्टमर सर्विस इंप्रूव करके लोगों का फिर से ट्रस्ट गेन करना पड़ता है ताकि वो अपनी मार्केट के अंदर स्टे कर सके। क्वेश्चन नंबर 3, if you were starting a small business which is better in beginning, traditional marketing or digital marketing, give one reason. अब आपने अगर जैसे कि अभी हमने लास्ट जो सेक्शन था उसमें हमने डिस्कस किया है कि अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपने बताना है कि आपने उसी सेम बिजनेस की मार्केटिंग करनी है, तो आप किस तरीके से करेंगे। आप डिजिटल मार्केटिंग करेंगे या ट्रेडिशनल मार्केटिंग, क्या आप बैनर छपवाएंगे, बैनर लगवाएंगे, आप न्यूज़पेपर में इश्तिहार देंगे, क्या करेंगे। तो आपने इसको सोचना है और दोनों की एक एक रीजन देनी है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए क्या रीजन होगी, अगर आप नहीं कर रहे तो क्या रीजन है, अगर आपने ट्रेडिशनल मार्केटिंग चूज किया तो उसका क्या रीजन है, और अगर आपने नहीं किया तो फिर उसका क्या रीजन है। तो दोनों चीजों के लिए आपको रीजनिंग करनी है। एक्टिविटी वर्क, विजिट अ नियर बाय शॉप, ग्रोसरी स्टोर, स्टेशनरी शॉप और सैलून एंड ऑब्जर्व वेदर इट यूजेस एनी डिजिटल टूल्स, व्हाट्सएप, पीओएस मशीन, social media, etc. and write one digital tool it uses and or can use. अब आपने कोई भी नियर बाय शॉप जैसे ग्रोसरी स्टोर है या कोई स्टेशनरी की दुकान है या फिर कोई सैलून है, तो आपने उसको विजिट करना है और आपने देखना है या उनसे पूछना है कि आप अपना बिजनेस किस तरीके से मैनेज करते हैं। क्या आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, क्या आप पॉइंट ऑफ सेल मशीन यूज कर रहे हैं, क्या आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, और अगर वो इनमें से कुछ यूज नहीं कर रहे तो फिर आपने बताना है पहले तो आपने बताना है कि वो कौन सा डिजिटल टूल यूज कर रहे हैं। अगर वो कोई नहीं करे तो फिर आपने सजेस्ट करना है कि उन्हें कौन सा डिजिटल टूल जो है वो यूज करना चाहिए। एक्टिविटी 2, ओपन अ सोशल मीडिया ऐप with a teacher or a parent guidance and identify one business page and note what product or services it offers.
अब आपने सोशल मीडिया ऐप खोलनी है अपने पेरेंट्स या फिर टीचर्स के साथ और आइडेंटिफाई करना है एक बिजनेस पेज, और फिर आपने ये लिखना है कि वो जो बिजनेस पेज आप जिस पे गए थे वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स या कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर कर रहे थे। एक्टिविटी 3, डिस्कस इन क्लास हाउ डिजिटल टूल्स कैन हेल्प स्मॉल बिजनेसेस सेव टाइम एंड इम्प्रूव कस्टमर सर्विस। अब आपने क्लास में डिस्कस करना है कि डिजिटल टूल्स स्मॉल बिजनेस को किस तरीके से हेल्प आउट कर सकते हैं, टाइम सेव कर सकते हैं और अपनी कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रोजेक्ट टाइम, think of a small business idea, for example an online bakery, handmade crafts or tutoring service। अब आपने एक स्मॉल बिजनेस आइडिया के बारे में सोचना है। वो आइडिया कुछ भी हो सकता है, चाहे कोई ऑनलाइन बेकरी हो, हैंडमेड आइटम्स हो या हैंडमेड क्राफ्ट हो, कोई ट्यूटरिंग की सर्विस हो। और फिर आपने क्या करना है, आपने राइट करना है अपने बिजनेस का नाम, आपने जो प्रोडक्ट और सर्विसेज देनी है वो, और एक डिजिटल टूल जो कि आपके बिजनेस को रन करने में हेल्प आउट करेगा। प्रोजेक्ट 2, डिजाइन अ सिंपल ऑनलाइन मार्केटिंग प्लान फॉर स्मॉल शॉप यूजिंग सोशल मीडिया। आपने एक सिंपल ऑनलाइन मार्केटिंग का प्लान बनाना है एक स्मॉल शॉप के लिए सोशल मीडिया को यूज करते हुए। अब वो जब आप बना रहे होंगे तो उसमें आपने मेंशन क्या करना है कि आपने कौन कौन से प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम। दूसरा, आप कौन सी कंटेंट टाइप यूज करेंगे, पिक्चर्स, वीडियोस या फिर आप ऑफर्स लगाएंगे। और तीसरा, आप किस तरीके से कस्टमर को टारगेट करेंगे या फिर कौन सी कस्टमर सेगमेंट को आप टारगेट करेंगे। तो ये सारी चीजें आपने लिखनी है अपना मार्केटिंग प्लान बनाते हुए। तो जी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 7 की एक्सरसाइज को सॉल्व किया, जिसमें हमने एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स को थ्योरेटिकल रीजनिंग के साथ आंसर किया। उसके बाद हमने लॉन्ग और शॉर्ट आंसर्स को देखा, फिर हमने प्रोजेक्ट्स को डिस्कस किया। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आई होंगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।